الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وأتم الحج والعمرة لله. حاضرین گرامی، حرمت والے مہینے چل رہے ہیں۔ حرمت والے مہینے میں جو کام ہمیں کرنا چاہیے اور جو نہیں کرنا چاہیے، ان کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ خصوصی طور پر حرمت والے مہینے میں سب سے پہلے ہم لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں، تو حج سے متعلق جو غلط چیزیں تھیں، یعنی حج کے استطاعت سے متعلق، وہ ہم کل کے درس میں معلوم کیے کہ حج کی استطاعت کے تعلق سے اور اس کے ارادے کے تعلق سے جو غلط فہمیاں اور غلط چیزیں، رسم و رواج پائی جاتی ہے، وہ ہم نے معلوم کیے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران سے اور سورۃ البقرہ سے دو الگ الگ آیتیں پڑھی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت میں: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر لوگوں پر حج کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، زاد راہ جس کے پاس ہو۔ تو حج خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ دوسری آیت سورۃ البقرہ کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر، اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے مکمل کرو۔ تو اب آئیے آج معلوم کرتے ہیں کہ جو لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں تو جانے سے پہلے ان سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہوتی ہے۔ کل ہم نے عمومی بات معلوم کی ہے کہ ارادہ کریں یا نہ کریں، استطاعت سے متعلق یا ارادہ کرنے سے پہلے جو غلطیاں ہوتی ہے۔ اب جن لوگوں نے حج کو جانے کا ارادہ کر لیا ہے، ان کا نام آ گیا ہے، ان سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہے، آج آئیے ہم اس کو پہلے معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہم حج جو کریں گے وہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اخلاص الالہیت ہونا چاہیے۔ دوسری بات، حلال کمائی سے ہونا چاہیے، حلال کمائی سے ہونا چاہیے۔ حج تو آدمی کر رہا ہے، پیسہ بھر رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، لیکن کمائی حرام کی ہے، حرام کی کمائی ہے۔ حرام کی کمائی سے حج کرنے والے کا حج اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے، جو ناپاک ہے، حرام ہے، ان کو قبول نہیں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی وہ مشہور روایت کہ ایک آدمی
इतुल सफर, लंबा सफर करके पहुंचता है, हाथ उठा के रो रो के गिड़गिड़ा के बारगाह इलाही में दुआ कर रहा है। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। परागंदा हाल, परेशान हाल आदमी की दुआ कबूल होती है। हाथ उठाकर बारगाह इलाही में रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ करे, आवोजारी के साथ दुआ कबूल होती है। इखलास और इल्लाहियत के साथ दुआ करे, दुआ कबूल होती है। इस बंदे के पास वो सारे असबाब मौजूद हैं, वो सारे असबाब बंदे के पास मौजूद हैं। सफर करके गया, मुसाफिर हैं, परागंदा हाल है, परेशान हाल है, हाथ उठा के रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से मांग रहा है। हाँ, उसके बावजूद भी उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। क्यों? नबी ने फरमाया, मतअमुहु हराम, मलबसुहु हराम, गुदिया बिल हराम, उसका खाना पीना हराम का है, पहनना ओढ़ना बिछोना हराम का है, उसकी ग़िज़ा हराम की है, कमाई हराम की है। कहां से उसकी दुआ कबूल होगी? फ़अन्ना इस्तजाबु लह, उसकी दुआ कहां से कबूल होगी? तो जाहिर सी बात है, अगर हराम हो, आपके पास बहुत सारे असबाब है दुआ के कबूल होने के, मगर हराम है, तो जाहिर सी बात है हराम से किया हुआ अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। तो पहली बात हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम हज को जा रहे हैं तो हमारी कमाई हलाल की हो, हलाल कमाई से जाए। किसी का हक दबोच के, किसी का हक मार के, किसी का हक छीन के लेके आप जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका हमारा हज काबिल कबूल नहीं होगा। ये पहली गलती। दूसरी चीज, हज को जाने वाले हाजी लोग जब कंफर्म हो गया है, अब निकलना है, अब क्या करते हैं? दावतें शुरू होती है, दावतें शुरू होती है। घर में दावत, रिश्तेदार व अकारिब के घर में दावत, दावत पे दावतें हो रही हैं, और सबको बोल रहा है कि मैं हज को जा रहा हूं, हज को जा रहा हूं, मुझे माफ करो, ये करो, वो करो। हाँ, सबको जमा करके इसमें रियाकारी आ जा रही है, रियाकारी, दिखावा। एक तो ये रस्म रवाज है, साहब इकराम हज को गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को गए, कोई दावतें खा के दावतें करके नहीं गए, किसी को बोल के, बहुत सारों को बोल के ढिढोरा पीट के नहीं गए। हाँ, जिनको बोलना है, जरूरी है, उनको बोल के जाएं, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं बोलना है। और उसके लिए दलील है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्रे का इरादा फरमा लिए, आके अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल मैं उम्रे को जा रहा हूं, क्योंकि आप अमीर वक्त, हाकिम वक्त हैं, आपसे परमिशन लेना है और आपको इन्फॉर्म करके जाना है, जरूरी है। तो जिनको इन्फॉर्म करना उनको करें, हर एक को बोलते जाएं। ये एक गलती, याद रखिए, ये गलती। अब आइए इसमें क्या गलतियां और इसके बुनियाद पर क्या क्या गलतियां होती है। सबसे पहली बात, नेक आमाल कबूल होने की शर्तें क्या क्या हैं वो हमें मालूम होना है। नेक आमाल कबूल होने की शर्तें हैं, पहली चीज आदमी का ईमान व अकीदा सही हो। दूसरी चीज, इंशाल्लाह मैं तफसील इससे पहले इसके बाद बताऊंगा। दूसरी चीज, हमारा और आपका किया हुआ अमल, हज, नमाज, रोजा, ज़कात, सदका, खैरात, जो भी नेकी करते हैं, तिलावत, दरूद, दुआ, ये नबी के तरीके पर होना चाहिए। अगर नबी के तरीके पर हमने नहीं किया तो हमारे ये नेक अमाल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। तफसील इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तीसरी और अहम शर्त यह है कि दिलों में इखलास और इल्लाहियत हो। किसी भी नेकी से पहले दिलों में इखलास और इल्लाहियत होना चाहिए। रियाकारी उसकी जिद है, रियाकारी। अगर हज से पहले हमारे अंदर रियाकारी आ जाए तो याद रखो हमारे हज काबिल कबूल नहीं है। और कल मैंने जिसे कहा है कि शैतान नेकी से पहले हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर नहीं हुआ, नेकी से पहले नहीं कर सका, तो नेकी के साथ करने की कोशिश करता है। अब नमाज पढ़ना शुरू की, उस वक्त इखलास लिल्लाह है, दिखावा नहीं है। शुरू करने के बाद कोई देख रहा है, कोई ये हो रहा, तो हम दिल में अब कुछ आ गया है, चलो लंबी रकात, लंबा सजदा, लंबा ये कर, तो पहले नहीं था, साथ में हो गया। कभी क्या होता है, नेकी से पहले भी गुमराह नहीं कर सका, नेकी के साथ भी नहीं कर सका, नेकी के बाद करता है। नेकी कर लिए, हज से पहले नहीं था,
हज करते हुए भी नहीं था। हज करके आने के बाद नाम के साथ हाजी ना लिखे तो गुस्से में आ जाएंगे। हाँ, अब हज से आने के बाद से दावतें चल रही है और फिर जो हाजी लिखना फला करना, ज्यादा हज कर ली तो अल-हाज लिखना है। इस्लाम के 5 अरकान है ना, क्या क्या है? शहादतैन, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। हज कर लिए तो हाजी, तो नमाज पढ़ लिए तो नमाजी भी लिखो साथ में, है ना, नमाजी है। रोजा रख लिए तो रोजदार भी लिखो। हाँ, ये हाजी है तो ये नमाजी है, ये रोजेदार भी है। फिर उसके बाद शहादतैन का कलीमा पढ़े हैं तो वो भी लिखो, शहादती भी है। हाँ, क्यों भाई, ये तो नहीं लिखते हो? ज़कात दे तो ज़काती भी लिखो। हाँ, मैं जो है ज़काती साहब, फुला जनाब ज़काती साहब। हाँ, हाजी साहब बोले तो खुश होते, क्यों भाई? ये भी तो अरकान है इस्लाम के। याद रखिए मेरे भाइयों, ये गलत बात है, क्योंकि हज पैसा खर्च करके वहां जाके आए हैं ना, तो वहां पर एक अपने एक अलग तरह के दिखावा है, रियाकारी है। तो देखो शैतान क्या कर रहा है, नेकी के बाद फिर गुमराह कर रहा है, और ये बहुत खतरनाक है। नेकी करने के बाद नेकी की हिफाजत बहुत अहम चीज होती है। नेकी कर लेना बड़ी बात नहीं है, नेकी अल्लाह के पास काबिल कबूल हो जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अब अगर हमारे पास इखलासुलिल्लाहियत नहीं है, हज का इरादा कर चुके हैं और हाजी जो है दिल में रियाकारी रखता है और एक को बोल रहा, सुना रहा है और दावतें हो रही है, जोड़े घोड़े, और उसके साथ साथ शॉपिंग पे शॉपिंग, शॉपिंग पे शॉपिंग, इतने सारे शॉपिंग की क्या जरूरत है? याद रखिए, जितनी जरूरी चीजें उतना कर लें। तो आज के दर्स में हमने खुलासे के तौर पर मालूम करते हैं कि ये मालूम किए कि जो लोग हज का हाजी इरादा कर लेते हैं उनसे जो गलतियां होती है वो आज हमने मालूम किए कि शुरुआत में सफर को निकलने से पहले जो गलतियां होती है मालूम किए। फिर इंशाअल्लाह आगे से बात ये सिलसिला जारी रहेगा। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको नेकी के पहले भी, नेकी के साथ भी, नेकी के बाद भी नेकियों की हिफाजत करने और नेकी अल्लाह के पास काबिल कबूल हो जाए, गलतियों से बचा ले, इसकी अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।